ابھی ذکر مولا علی چل رہا تھا، ایک دو شعر میرے ذہن میں بھی آئے ہیں، آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ علی ولی کے یہ سارے اسیر بیٹھے ہیں، علی ولی کے یہ سارے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سپی باز ضمیر بیٹھے ہیں، کھچی تھی 13 رجب کو جو خانہ کعبہ میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے مولائے کائنات کی ذات اللہ اکبر، وہ ذات طیبہ ہے، وہ بلند ذات ہے، اللہ اکبر۔ اگر کسی کو اللہ نے دولت عطا فرمائی تو وہ دولت ایک نسل دو ایک مشتق ہو کر کے پھر دولت سمٹ جایا کرتی ہے، وقت بدلتا ہے، انسان کی امیری غریبی کا فیصلہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تو وہ خاندان میں بیٹا ہو، پوتا ہو، پر پوتا ہو، عالم دین رہا کرتا ہے۔ ایک دور آتا ہے جو خاندان علم کی بنیاد پر پہچانا جاتا تھا، اب اس خاندان میں کوئی اہل علم زندہ نہیں رہتا ہے۔ میرے پیارو، اسی طریقے سے آپ پورے اپنے علاقے کا سروے کریں، آپ کہیں گے حضرت فلاں کا دادا جو تھا نا بڑا متقی پرہیزگار تھا، فلاں کا دادا جو تھا نا اس نے نواب گنج میں عید میلاد النبی کا جلوس نکالا تھا، لیکن آج دیکھو اس کا بچہ شراب پیتا نظر آتا ہے، اس کا بچہ جوا کھیلتا نظر آتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ ہر چیز میں تغیر ہوتا رہتا ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ایک گھرانہ علم کا تھا، ایک دور آیا گھر تو موجود ہے، علم اٹھ گیا۔ ایک قصہ ایک مشہور تھا کہ بہت پیسے والا ہے، حاتم طائی، محل تو موجود ہے لیکن دولت ختم ہو گئی، تاج محل تو موجود ہے لیکن بادشاہت ختم ہو گئی، ہمایوں کا قلعہ تو موجود ہے لیکن نوابیت ختم ہو گئی۔ آج دیکھو بادشاہوں کے قلعے آباد تو ہے لیکن میرے پیارو ان قلعے میں جانوروں کے پیٹ نظر آتے ہیں، لو اسٹینڈ بنا ہوا منظر نظر آتا ہے، عیاشیوں کا اڈا بنا ہوا نظر آتا ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں اسی دھرتی پر آسمان کے نیچے صرف ایک گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ نبی پاک نے اپنے در کی خیرات علی کو علم کی ایسی عطا فرمائی کہ علی کا بیٹا امام حسن بھی عالم ہے، امام حسین بھی عالم ہے، زین العابدین بھی عالم ہے، امام باقر بھی عالم ہے، امام جعفر صادق بھی عالم ہے، امام موسیٰ قاسم بھی عالم ہے، امام احمد علی رضا بھی عالم ہے، امام لکی بھی عالم ہے، امام تقی بھی عالم ہے، امام حسن عسکری بھی عالم ہے۔ آؤ علی کے گھر والوں کو دیکھتے ہیں تو اسی یوپی میں کہیں زندہ شاہ مدان نظر آتے ہیں، کہیں شیخ حسام الدین نظر آتے ہیں، کہیں مخدوم سمنانی نظر آتے ہیں، کہیں سالار مسعود غازی نظر آتے ہیں، کہیں غریب نواز نظر آتے ہیں، کہیں شاہ پیرا نظر آتے ہیں، کہیں قطب عالم نظر آتے ہیں، کہیں بندہ نواز نظر آتے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ سارے گھرانوں میں تغیر تو ہوتا رہتا ہے، علی کا گھر ایسا گھر ہے کہ دادا بھی امام ہے، آج کا بیٹا بھی امام ہے۔ اب میرا امام کہتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول پانے میرے سرکاروں کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مولا کائنات۔ واہ واہ واہ، میرے پیارو یہ علی کی شان ہے۔ بولو بولو، مچل کے بولو، علماء سے بولو۔ وہ ولی ولی نہیں ہو سکتا جب تک علی علی نہ کرے، وہ ولی ولی نہیں ہو سکتا جب تک علی کو یاد نہ کرے۔ اور جو علی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے بو علی شاہ قلندر بنا دیا کرتا ہے، اور بو علی شاہ قلندر جب ہو جاتے ہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اپنے مرید صادق حضرت امیر خسرو، آج کے مریدین نہیں ہیں
कि पीर को देख करके, दूसरे पीर को देख करके, तीसरे पीर को देख करके रंग बदलते हुए नजर आए। मेरे प्यारो, वो अमीर खुसरू जो पीर की जूतियों की इस महक से समझ जाते थे कि मेरे पीर का गुजर इस गलियों से हुआ है, अल्लाह ताला ऐसी दीवानगी हमें भी अता फरमाते हैं। मेरे प्यारो, वो अमीर खुसरू कहते हैं, वो अमीर खुसरू से उनके मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, ए खुसरू कभी कभी पानीपत चले जाया करो, कभी कभी पानीपत चले जाया करो, अबू अली शाह कलंदर की महफिल में बैठा करो। जबकि अबू अली शाह कलंदर भी महबूब इलाही के मुरीद हैं। मेरे प्यारो, अमीर खुसरू पीर के कहने पर अबू अली शाह कलंदर के पास गए। अबू अली शाह कलंदर ने जब सादिक मुरीद को देखा तो क्या कहा मालूम है? कहा, ए खुसरू, मैं तुम्हारे पीर को कभी नबी की महफिल में नहीं देखता हूं, मैं तुम्हारे पीर को नबी की महफिल में नहीं देखता हूं। ये जुमला सुनते ही जो सादिक मुरीद होता है ना, उसका दिल हाथों में आ जाता है। वो आते हैं पलट के रोते रोते, अब कभी उनके पास नहीं जाऊंगा, मेरे पीर के बारे में ऐसा कहा, अब नहीं जाऊंगा। फिर महबूब इलाही ने कहा, ए खुसरू जाओ पानीपत अबू अली शाह कलंदर से मुलाकात करना। कहा, हुजूर मत भेजिए। कहा, क्यों? कहा, मैं जब भी जाता हूं आपके कहने पर वो मुझे बार बार एक सवाल कहते हैं कि तेरे पीर को मैं नबी पाक की महफिल में नहीं देखता, तो हुजूर मुझे बड़ा रंज और तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। महबूब इलाही फरमाते, फिर से जाओ। फिर गए, वही सवाल अब की तय करके आए कि अब मैं इनके पास नहीं जाऊंगा। फिर महबूब इलाही ने कहा कि खुसरू जाओ पानीपत अबू अली शाह कलंदर के पास। कहा, हुजूर ऐसा ऐसा मामला। कहा, जाओ तो अब अगर ये तुमसे कहे ना, सुनना, अब कहें अगर कि तुम्हारे पीर को नहीं देखता तो उनसे कहना मुझे नबी की महफिल दिखा दो, मैं खुद पीर को तलाश कर लूंगा। क्या काम? खुद महफिले नबी दिखा दो। अब मुरीद सवाल का जवाब लेकर के हाजिर खिदमत हुए। अबू अली शाह कलंदर ने आदत के मुताबिक इरशाद फरमाया, तुम्हारे पीर को मैं नबी पाक की महफिल में नहीं देखता। हजरत अमीर खुसरू कहते, हुजूर एक बात अर्ज करूं? बोले क्या? कहा, मुझे नबी पाक की महफिल दिखा दो। बोलो, और मैं अपने पीर को खुद तलाश कर लूंगा। तारीख गवाह है, अबू अली शाह कलंदर ने अमीर खुसरू के सीने पर हाथ रखा और आंखें बंद कराई और कहा, जाओ मैं तुम्हारी किस्मत की मेराज शुरू कर रहा हूं। मेरे प्यारों, वो लम्हे आ गए, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, वो दौर आ गया कि खुद अमीर खुसरू कहते, मैंने महफिल को देख लिया और मैं चल के कहूंगा, और महफिल में मैंने अपने पीर को भी देखा कि जो नबी पाक के बगल में बैठे थे। प्यारो, पता क्या चला? जो अली का जिक्र करता है, जो अली के नाम की माला छपता है, जो अली के नाम का विर्द करता है, उसका ये मकाम है कि पानीपत में बैठा करके अमीर खुसरू को लामका की सैर करा दिया। जब अली का नाम लेने वाला इतना ताकत वाला हो सकता है तो हैदर कल्लार की ताकत का आलम क्या होगा? तभी तो सारे वलियों ने कहा, शाहे मर्दा, शेर यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फतारिल्ला अलीला सैफिल्ला सुल्फ़िकार। मेरे दोस्तों, अली से मोहब्बत ये पार्ट ऑफ द ईमान है। अब एक आखिरी बात, गुफ्तगू खत्म। मैं प्रशासन वालों का भी ममनून मशकूर हूं। इतनी ठंड रात में ये अपनी चौकी पर होते, लेकिन सिर्फ आपकी मोहब्बत में ये यहां पर आकर खड़े हैं। अल्लाह इनके भी कल्ब में नूरे हिदायत को रोशन फरमाए और इन्हें भी इस उर्स की बरकतों से माला माल फरमाए। मेरे प्यारों, ईमान का हिस्सा है। आप किसके उर्स में आए हैं? शहीद मर्द बख्श के उर्स में आप आए हैं। मेरे प्यारों, शहीद किसे कहते हैं मालूम है ना आपको? सबको पता है? अपने आप को अल्लाह की राह में जो फना कर दे वो शहीद होता है। पर इतना मैं मोतबाना अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूं, इतने अजीम उर्स में आए हो, वो शहीद जो होता है
खुदा की राह में जो शहीद होता है वो कैसा भी हो, ईमान वाला अगर है तो वो जिंदा है, क्योंकि कुरान उसकी जिंदगी का ऐलान फरमाता है। तो जिस शहीद के उर्स में आप आए वो जिंदा है, और उनके जिंदा होने का सबूत ये है, जिस ठंड रात में आपको घरों में रहना चाहिए था, ये उनकी शहादत की देन है। हम घर में नहीं, उनके कदमों तले बैठे हुए। मेरे प्यारो, जब उनके कदमों तले बैठे हो, नवाबगंज वालों, तुम्हारा नाम ही नवाबगंज है, तभी तुम्हारे जहन में नवाबियत है, और इस नवाबियत के बुखार को अली के नाम से नूर भाई ने उतारा है, तब आपने बोलना शुरू किया है। मेरे प्यारो, एक उर्स करने आए हो, मौला अली से मोहब्बत करते हो, अल्लाह और उसके रसूल के दीन का कलमा पढ़े हो। अब ये बताओ, अंधेरा और उजाला क्या एक साथ जमा हो सकता है? अगर उजाला है तो अंधेरा नहीं, और अगर अंधेरा है तो उजाला नहीं। ये कैसे हो सकता है कि अली का नाम लेने वाला एक हाथ से अली के लिए हाथ उठाए और दूसरे हाथ में शराब का ख्याल हो, शराब की बोतलें हो? वो कैसे अल्लाह वाला हो सकता है, अल्लाह के वली वाला, कि जिसके हाथ में जुए के पट्टे हो? वो कैसे अल्लाह के वलियों का हो सकता है, जो अल्लाह के वलियों के खुले आम फरमान की धज्जियां उड़ाता हो? याद रखना मेरे कौम के नौजवानों, तुम लाख कुछ भी कर लो, लंगरे खिला दो, महफिलें सजाते रहो, लेकिन अगर तुमने अपने हाथ में शराब की बोतल ले ली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शराब और ईमान एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। अगर कोई शराब पीता है, गोया कि उसके अंदर ईमान नहीं है, और अगर ईमान है तो वो शराब नहीं पी सकता है। ये किसी और का फरमान नहीं, यह उसका फरमान है जिसने अली के खातिर डूबे हुए सूरज को पलटाया था। यह उनका फरमान है जिसकी एक उंगली से चांद के दो हिस्से हुए थे। यह उनका फरमान है जिसने बेला हिजाब खुदा वहदहू ला शरीक की ज़ियारत किया। और मेरे इमाम ने कहा, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छिपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं अल्लाह के नबी के प्यारे दीवानों, ऐ उर्स में आने वाले नौजवानों, ऐसी बदतरीन गुनाह से अपने आप को पाक कर लो, अपने आप को पाक कर लो। आज हम मजलूम है, आज हम पर जुल्म ढाया जा रहा है, उसकी असल वजह क्या है? असल वजह सिर्फ इतनी है, हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान से दूर हो चुके हैं। आज इसी वजह से हम पर मुसीबतें आ पड़ती हैं, आज हम तकलीफ के शिकार होते जाते हैं। जिस कौम को अल्लाह ताला ने इस कह करके दुनिया में भेजा था, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का ताज जिस कौम के सर पर था, आज वो कौम शराब की दलाली में नजर आता है। सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शराब पीता है, या जो लाके पिलवाता है, या जो शराब बनाता है, या जो शराब बनवाता है, या जो शराब की बोतल को ला करके किसी के हाथ में देता है, प्यारे आका फरमाते हैं, अगर वो पीता नहीं है, फिर भी अगर बोतल ले करके किसी के लिए जा रहा है, हुजूर फरमाते हैं, चाहे लेने वाला हो, चाहे देने वाला हो, चाहे बेचने वाला हो, चाहे खरीदने वाला हो, चाहे शराब बनाने वाला हो, चाहे शराब का ट्रांसपोर्ट करने वाला हो, चाहे शराब की पार्सल पैकिंग करने वाला हो, प्यारे आका फरमाते हैं, इन तमाम लोगों पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। आगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, उन्हें जब जहन्नम के ईंधन बना दिया जाएगा, उनके जिस्म को जब पिघाल करके उनके जिस्म से पीप निकलेगी, हुजूर ने फरमाया ये पीप कल कयामत के दिन शराबियों को पिलाया जाएगा, बतौर अज़ाब पिलाया जाएगा। प्यारे आका से किसी ने पूछा कि शराबी जब मैदान महशर में आएंगे उनकी अलामत क्या होगी, लोग जानेंगे कैसे ये शराबी आ रहा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शराबी होकर के कयामत के दिन कल आएगा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को सिया कर देगा, काला
कर देगा। आप देखो तो सही, जो भी शराबी होता है दुनिया में अल्लाह उसे जलील और रुसवा करता है, उसके चेहरे पर लानत की फटकार हुआ करती है। करीम आका फरमाते हैं उसका चेहरा मस कर दिया जाएगा, काला कर दिया जाएगा, और उसकी जुबानें इतनी लंबी हो जाएगी कि उसके सीने तक जुबान आएगी, उसके जुबान से थूक का पानी जारी रहेगा और उसे जहन्नमियों के पीप को पिलाया जाएगा। ऐ नौजवानों, अहद करके उठो कि इस जलसे में उठने से पहले अगर हम ये अमल करते हैं तो अल्लाह ताला इस जलसे की तुफेल हमें इस अमल से महफूज फरमा ले। ये चंद दिनों की जिंदगी है, इन चंद दिनों की जिंदगी को ऐश के साथ गुजारोगे प्यारो, सिर्फ रुसवाई है और जिल्लत है। ये कब्र में जो दोस्त तुझे शराब के अड्डों की दावत देता है वो कब्र के हालात को पूछने नहीं आएगा, वही यार बार बार कहेगा इमाम साहब जल्दी जनाजा उठाओ बदबू आ रही है। जो दोस्त तेरी कब्र तक ना आता हो, जो माँ बाप तेरी कब्र तक ना आते हो, जो औलाद जिनके लिए तूने शराब बेच करके हराम कमाई ली थी, खाई थी और घर में बच्चों को खिलाया था, मेरे प्यारो वो औलाद भी तेरे करीब नहीं आएगी। आज अक्सर मर्द अपनी बीवी बच्चों को खुश करने के लिए हराम और हलाल में तमीज पैदा नहीं करते हैं। कहते हैं पैसा जैसा भी हो चल जाएगा, चल जाएगा मेरे प्यारो, पैसा कैसा भी हो चल तो जाएगा, लेकिन दुनिया में इसकी भरपाई तुमको करनी पड़ेगी। आज वजह क्या है? हमारे घरों में माजूर बच्चे पैदा हो रहे हैं। आज वजह क्या है? घर में हमारी बीवियां तकलीफ में है। आज वजह क्या है? कोई भी मर्द हो उसकी बीवी परेशान हाल है। जब तुमने हराम और हलाल में तमीज बंद कर दी, जितना हराम कमाया था सारा पैसा दुनिया में भी अस्पताल में तबाहियों में तुम खर्च करोगे। उसके बाद कब्र में जो आजाब है वो अलग है, हश्र का आजाब है वो अलग है। मेरे प्यारो, कहां दुनिया की तरफ भागते हुए नजर आते हो? आओ ना अपने दीन की तरफ, आओ अपने नबी पाक की तरफ, आओ अपने रब्बे काबा के पास। वो रब है जिसने हमें साल में 3 अजीम महीने अता फरमाए, रजब, शाबान और रमजान। और मेरा रब कहता है जिसने इस मुकद्दस माह की तासीफ कर लिया, अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देने वाला। वो रब तुम्हें मोहलत देता है। हर रात जब तू सो जाता है, तेरा रब तुझे पुकार के कहता है ए मेरे बंदे आजा, आपने रब से कुछ मांग ले, रब से कुछ मांग ले। ये दुनिया की चौखट पर रोने वाली आंखों, तुम रो रो करके आंसू सुखा दोगे, फिर भी समाज में तुम्हारा मजाक उड़ेगा, तेरे आंसू की कीमत ना रहेगी। लेकिन एक बार अपने रब के सामने रो के तो देख, एक बार अपने रब के सामने मुसल्ला लगा के रो के तो देख। वो रब तो ऐसा है। करीम आका ने इरशाद फरमाया 2 कतरे अल्लाह को बेपनाह महबूब हैं। एक वो कतरा खून का जो उसकी राह में शहादत का एक कतरा गिरता है, और दूसरा हुजूर पाक ने फरमाया उसकी खशियत से आग के आंसू का एक कतरा जो गिरता है। सहाबा ने पूछा हुजूर इन कतरों का वजन क्या है? कहा इनका वजन ये है जब आदमी खशियत में, अल्लाह के खौफ में अपने गुनाहों पर नादिम हो करके एक कतरा आंसू का गिराता है। प्यारे आका फरमाते हैं उस एक कतरे आंसू में इतनी ताकत होती है कि उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को अल्लाह बख्श देता है। यारो, तुम वहां कहां जा रहे हो जहां ना इंसाफी का बोर्ड लगा हुआ है? आओ ना इंसाफ की तरफ। घर बचाना है, किसी दुनियादार की ताकत से नहीं बच सकता, लेकिन अगर तू रब का हो जा तो दोस्तों घर गिराने वाला खुद तेरा घर बचाने के लिए आ जाए। आज एक मस्जिद ना संभली जा रही है, वजह क्या है? ईमान में पुख्तगी ना रही, वो जज्बे ईमानी ना रहा, वो हरारत ईमानी ना रही। और कैसे हो सकती है?
जो कौम खुदा के हुजूर सजदा ना करती हो तो तुम्हें दुनिया के चक्कर तो लगाने पड़ेंगे। काश के हमारे नौजवान मौजिन के कहने पर आ जाते मस्जिद की तरफ। आज ये दुनिया नवाबगंज के लोग तुम्हारी तरफ आ जाते हैं। आज वजह क्या है? एक अल्लाह के वली के दुनिया से जाने के बाद हिंदू हो, मुसलमान हो, अधिकारी हो, मिनिस्टर हो, आज वो औलिया के पास क्यों जाते हैं? वजह इतनी है, वो इतनी वजह है कि उनकी जिंदगी से और मौत तक का सफर जो रहा यही रहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्म में दुनिया से मुसलमान गया और अल्लामा इकबाल कहते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या लोगों कलम तेरे हैं। आज आप देखो अजमेर मोहल्ला में, देखो महबूब इलाही में, देखो कचौचा में मखदूम समनानी की बारगाह में बड़े बड़े वक्त के बादशाह अपनी सल्तनत की चादरें भिजा करके अपनी हुकूमत की हिफाजत की दुआएं मांगते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ये वो लोग हैं जिनके ताल्लुक से कुरान ने कहा फकत फाज़ा फौजन अजीमा, ये अजीम कामयाबी को इन्होंने हासिल किया है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, बड़ा अफसोस होता है, बड़ी तुमने गफलत में जिंदगी गुजार ली, बहुत सो लिया, बहुत गुटके पान मसाले सिगरेट हुक्के पी लिए। अब आओ अपने रब की तरफ आओ। तुमने 40 साल बगैर दाढ़ी रख के भी दुनिया देख लिया, अब आओ ना दाढ़ी रख के भी एक बार अपने आप को देख लो। तुमने 40 साल बगैर नमाज पढ़ के जिंदगी गुजार ली, अब 40 साल के बाद नमाज पढ़ के भी तो जिंदगी गुजार लो। तुमने 40 साल फजूलियात के मैसेज तो पढ़े, अब 40 साल हो गए, चलो कुरान का भी पैगाम पढ़ लो। तुमने 40 साल खुराफात वाहियात में दिनों रात गुजार दिए और नतीजा क्या मिला? अगर मकरूज थे तो कर्ज का बोझ हटा नहीं और भी कर्जदार होते चले गए। अगर तकलीफ में थे तकलीफ का बोझ बढ़ता चला गया। अगर मेरे प्यारों, मैं कहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर आदमी हलाल रिस्क से एक ईंट रख दे तो किसी दुनिया हाकिम में ताकत नहीं है उस ईंट पर कोई उंगली रख के दिखा दे। लेकिन प्यारो, अगर इधर उधर झपट पटट का मामला होगा तो कोई भी आएगा, कोई गिराए या ना गिराए, रब के मुकद्दर फरिश्ते तेरी इमारत गिरा के चले जाएंगे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, बहुत ताखीर हुई, बहुत सो लिया, बहुत नारे लगाए। यकीनन नारों में आज भी ईमानी हरारत पाई जाती है, लेकिन कब? जब अमल आपके साथ हो, जब कुरान आपके साथ हो, जब नमाज आपके साथ हो, जिक्र और अस्कार आपके साथ हो। मैं तो सलाम पेश करता हूं अपनी कौम की औरतों को, अपनी कौम के शहजादियों को कि ये तो हिजाब में आ गई, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं आ सकती है। इन्होंने तो अपने आप को संवारना चाहा, लेकिन मर्द संवारने को नहीं तैयार है। आज मैं कहता हूं, अगर हमारे घरों में अक्सरियत, अगर सुन्नियत जिंदा है तो इन औरतों की देन है, इन औरतों की देन है। बदनसीबी से हमारे माशरे में ऐसे भी मर्द हैं जिन्हें ईद का भी ख्याल नहीं होता, जुमा के दिन का ख्याल नहीं होता। ये घर की औरतें कहती हैं आज जुमा का दिन है, जा नमाज तो पढ़ ले। ये औरतें तुम्हें धक्के मार के मस्जिद की तरफ भेजती है। मेरे प्यारो, इतना तुम्हारा अखलाक गिर चुका है कि आज तुम्हारी बच्चियां कहे कि अब्बा नमाज पढ़ लो, अब्बा छठी का दिन है ये कर लो, अब्बा आज ये कर लो। उस बाप को डूब के मर जाना चाहिए जो बाप औलाद की तरबियत के लिए था। आज बच्चे बाप की अल्लाह। मेरे प्यारो, कब तुम जाओगे? कब अपने आप को बदलोगे? कब अपने आप को समझोगे? मैं कहता हूं, अगर अलाउड हो जाए ना शरान कि औरतें मस्जिद में नमाज पढ़े, कोई मस्जिद खाली नहीं रहेगी। बेशक हक है, कोई मस्जिद खाली नहीं रहेगी, लेकिन शरीयत ने इजाजत नहीं दिया। शरीयत ये कहती है कि औरतें जितना भी पोशीदगी में नमाज पढ़ेगी इतना उसके नमाज का सवाब अल्लाह बढ़ाएगा, इतना उसे सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। क्योंकि औरत जो है अल्लाह की सिफते बातिन से, अल्लाह ने अपनी सिफते बातिन औरत को अता फरमाई और मर्दों को अल्लाह ने सिफते जाहिर का मजहर बनाया है।
میرے پیارو اپنی نیکیوں کو ظاہر کرو. بہت مزے کر لیے, بہت لوگوں کو لڑا لیے, بہت چناؤ میں ادھر ادھر افراتفری کر لی. آؤ نا اس پارٹی میں آ جاؤ جو پارٹی جنت کا راستہ دکھاتی ہے, جو پارٹی نفرتوں کو نہیں پھیلاتی, جو پارٹی نماز کی طرف بلاتی ہے, جو جماعت تمہیں قرآن کی طرف بلاتی ہے. وقت بڑا پیارا ہے, بس ایک ہفتے کے بعد تقریباً شب برات آنے والی ہے. دوستو یہ رات تو مقدر کو سنبھالنے والی ہے. اس رات کے تعلق سے فرمایا گیا ہے اس رات میں تمہارے مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے, فیصلہ ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں نے یہ رات بنا لیا ہے, اسی رات ان کا فیصلہ ہوتا ہے, تو میں نے کہا تیرے پاس بھی کوئی ایسی رات ہے؟ اللہ کا شکر ہمارے پاس کچھ تو ہے, کچھ تو ہے ہمارے پاس کچھ تو ہے. اس رات میں تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے, اس رات میں تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے, اس رات میں تمہارے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے, اس رات میں تمہاری مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے, اس رات میں تمہارے حسن خاتمہ کا فیصلہ ہوتا ہے. میرے پیارو اس رات کو پڑاکے سے نہیں, اس رات کو موٹر سائیکل سے ہوٹلوں کے اڈے پر پھر کے نہیں, بلکہ اس رات کو اللہ کے حضور مصلی لگا کر کے, قرآن کی تلاوت کر کے, یہ سوچ کر کے کہ جس طرح تنہائی میں تو آج پڑھ رہا ہے, ممکن ہے اس تنہائی جب تو قبر میں محسوس کرے گا, یہ تنہائی کا پڑھا ہوا قرآن تیری قبر میں نور بن کے آئے گا. تنہائی میں درود پڑھو, یہ سوچ کے مولا جب کوئی نہیں رہے گا تو کم سے کم کوئی آ جائے گا, درود کی شکل میں میری قبر میں میرا ساتھ دینے کے لیے آ جائے گا. میرے پیارو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ بہت بڑے ولی جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الطائفہ کا خطاب فرمایا, ولیوں کی جماعت کے سردار ہیں جنید بغدادی, جو حضور پیرانے پیر دستگیر بڑے پیر غوث پاک کے پیروں کے پیر میں آتے ہیں. وہ جنید بغدادی جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا ایک مرید تھا, اس نے تمنا رکھی کہ میرے شیخ جنید بغدادی کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا ہوگا, کیا ہوا ہوگا. وہ اسی خیال میں اس کی آنکھیں لگ گئی, وہ سویا, اس نے جنید بغدادی کو دیکھا. حضرت جنید بغدادی سے اس نے پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ قبر کے معاملات کیسے رہے, کون سی چیز آپ کو قبر میں کام آئی. حضرت جنید بغدادی فرماتے, اسے ایھا الولد میں امام غزالی نے نقل فرمایا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے جو کچھ بھی تقریریں کی وہ سب فضاؤں میں رہ گئی, سب ہواؤں میں بکھر گئی, جو کچھ بھی کتابیں لکھی وہ سب تو ختم ہو گئی, میرا لکھنا بھی ضائع ہو گیا. تو کہا حضور تو آپ کو کام کیا آیا. آپ فرماتے ہیں جب رات کی تنہائی میں جو اٹھ کر کے میں اپنے رب کے حضور روتا تھا, قیام کرتا تھا, وہ رات کا اٹھنا, وہ رات کا ذکر کرنا, وہ رات کا قیام کرنا مجھے قبر میں کام آیا ہے. پتا کیا چلا, ایک جو ولیوں کی جماعت کے سردار ہیں, وقت کے خطیب بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, مصدق بھی ہیں, اس کے باوجود کہہ رہے ہیں میرا بولنا کچھ کام نہ آیا, میرا لکھنا کچھ کام نہ آیا. تو جو دوستو سوچو, جب بولنے والے کا بولنا کام نہیں آ رہا ہے تو سننے والوں تمہارا کیا کام آئے گا, بیٹھنے والوں تمہارا کیا کام آئے گا. آؤ اپنے رب کے حضور مصلی لگاؤ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک سپاہی سے پوچھا, کہا مجھے علی کے بارے میں بتاؤ, حیدر کرار کے بارے میں بتاؤ کہ حیدر کیسے تھے, ان کا اخلاق کیسا تھا اور ان کا اللہ سے تعلق کیسا تھا. حضرت امیر معاویہ کا دربار سجا تھا, آپ کا سپاہی کانپنے لگا کہ کہیں میں تعریف کروں اور کہیں میرے سر کو جدا نہ کر دیا جائے. اللہ اکبر. اس نے کہا بادشاہ سلامت, اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ہاں تجھے امان ہے, لیکن سچ سچ بتاؤ حیدر کرار کے بارے میں, فاتح خیبر کے بارے میں ان کا کوئی عمل بتاؤ, اللہ سے ان کا تعلق کیا تھا. وہ شخص کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں نے علی کے ساتھ کئی راتیں بتائی ہیں, علی کے ساتھ کئی دن گزارے ہیں. میں نے یہ دیکھا جب پورا مدینہ سو جایا کرتا تھا, جب پورا کوفہ سو جایا کرتا تھا, جب پورا نجف سو جایا کرتا تھا,
उस वक्त अली उठते थे और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होते थे और इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ियों के एक एक रेशे से आंसुओं के कतरात ऐसे झड़ते जैसे किसी के चेहरे पर पानी का झरना झड़ रहा हो। दोस्तों सोचो तो सही, वो अली जिनका जिक्र करना इबादत, जिनको याद करना इबादत। अरे जबकि मुफस्सिरों ने लिखा है जिनके नाम आमाल का उन्वान अली होगा वो सब जन्नत में दाखिल होंगे। मेरे आका ने फरमाया मैं उस वक्त मुतमईन हो गया कि जब मैंने जन्नत की सैर की और लिखा हुआ पाया इमाम मुत्तका अली, मुत्तकियों के इमाम अली है, मैं मुतमईन हो गया कि मेरे बाप मेरी कौम की लगाम अल्लाह ने किसी और के हाथ में नहीं, हैदर कर्रार के हाथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुर्शे मुक़द्दस, औलादे मौलाए कायनात हजूर सैयद जामी अशरफी साहब क़िबला, मुफ्ती शहनवाज साहब क़िबला। नारे तकबीर। मेरे प्यारों, जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत में दुनिया में जन्नत की बशारत दिया हो, जिनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जिनकी बीवी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार है, वो अली के अंदर खशियत इलाही ऐसी है कि कहने वाले ने कहा जैसे चेहरे पर किसी ने आंसुओं का झरना जारी कर दिया हो। वो अली इतना रोते थे। मेरे प्यारो, हमें किसने कौन सा ख्वाब दिखा दिया, किसने हमें जन्नत की सैर करा दी, किसने हमें जन्नत की बशारत सुना दी कि हम इतने मुतमईन हो गए कि हमें न नमाज का ख्याल है, न रोजे का ख्याल है, न शब बारात का ख्याल है, न लैलतुल कद्र का ख्याल है। अरे प्यारो, गफलत की नींद से जागो, उठो। आज आप देखो, आपकी इसी बेहयाई की वजह से, इसी उल्लानियत की वजह से, इसी गुनाह कबीरा की वजह से आज देखो हमारी कौम की बच्चियां गैरों के साथ भागती हुई नजर आ रही है। वजह क्या है? हमने शादी को शादी नहीं तिजारत बना करके रख दिया है। मर्द लोग इस कदर फरमाइश करते हैं। अरे प्यारो, अल्लाह ने तुझे ताकत दी थी कमाने के लिए, तुझे किसी पर अल्लाह ताला ने तुझे ताकत दी थी कमाने के लिए, तभी तो तुझे मर्द बना करके भेजा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बच्चा पैदा होता है रब फरमाता जा अपने माँ बाप का सहारा बन, और जब बच्ची पैदा होती है रब फरमाता जा अपने माँ बाप के लिए रहमत बन। आज क्या है? बच्चे माँ बाप बूढ़े हैं, ठंडक की रात है, बच्चे तो कमरे में हीटर लगा करके सो गए, माँ बाप का उन्हें कोई पता नहीं। कई मौतें ऐसी भी होती है हमारे हिंदुस्तान में कि बच्चों ने माँ के कमरे में आग लगा करके धीमी आग में छोड़ दिया, कमरा बंद कर दिया, और क्या हुआ? धुएं की वजह से एक ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई जिसकी वजह से माँ बाप का इंतकाल हो गया। मेरे प्यारो, जो कौम अपने इमाम की कदर ना करती हो, माँ बाप की कदर ना करती हो, अपने उलमा की कदर ना करती हो, अपने असातिज़ा की कदर ना करती हो, अपने बड़ों की कदर ना करती हो, और उस कौम को जन्नत का ख्याल, ये ख्याल नहीं, ये खामोखा का ख्याल है। मेरे प्यारो, आज मुफ्ती शाहनवाज अजहरी साहब क़िबला, इनका इस गांव से क्या ताल्लुक? ये तो दूसरे गांव के रहने वाले हैं। उसके बावजूद भी 35 साल से बंद एक मदरसे को अपने बल पर, आप पर भरोसा करके, आपकी ताकतों पर भरोसा करके कायम किया है। क्या इनके बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे? क्या इनके भतीजे यहाँ पढ़ने आएंगे? क्या इनकी नस्लें यहाँ पढ़ने आएंगे? नहीं, इन्हें मालूम है, एक आलिम को ये बेखूबी मालूम है, अगर अल्लाह ने मुझे इल्म से आरास्ता किया है तो मेरी कौम का हर बच्चा वो आलिम दीन का बच्चा हुआ करता है। आज हम पिछले क्यों हैं? वजह ये है हम दीन से भी दूर हैं, हम दुनिया से भी दूर हैं, हम भारत के संविधान से भी दूर हैं और कुरान और सुन्नत से भी दूर हैं। तो कौन हमें गले लगाएगा? कौन हमें अपने पास बैठाएगा? ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने तुम्हें सरदार बना के भेजा है। दलाली खत्म करो, चापलूसी खत्म करो, दलालों के चक्कर में मत पड़ो। अगर पढ़ना है शेख हिसामुद्दीन मालिक पूरी के कदमों में जाओ। वो इतनी असली बात है कि अगर वक्त के इमाम से पूछो तो कहेंगे वो बात है कि तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सबका तेरा। आपके
6 किलोमीटर करीब में जो आस्ताना है, ये कोई मामूली आस्ताना नहीं है, ये कोई मामूली आस्ताना नहीं है। आज इधर उधर नेता फेता विधायक प्रधान के चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह करने वालों, सुनो, ये तुम्हारे मुकद्दर को क्या सवाल पाएंगे। जाओ ना शेख हिसाबुद्दीन मानिकपुरी के कदमों में। और ये जामी मियां नहीं कह रहे हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क के शहंशाह अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजा फखरे हिंदुस्तान हजरत करीम नवाज, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे हमारे मुल्क के नरेंद्र मोदी हो, कुर्सी उस वक्त तक महफूज रहती है जब तक करीम नवाज के कदमों में इनकी चादरें। आजाद हिंदुस्तान, मज़हब इस्लाम। पता क्या चला, हमारे मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी चादर भेज के ये बता रहे हैं, हमें मुसलमानों इस्लाम से नफरत नहीं है, फजूल मुसलमानों से हमें नफरत है। ना तो क्या ताल्लुक है, लेकिन ताल्लुक ऐसा है, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा वो करीम नवाज। यूपी वालों क्या कहने, गुटके पान सिगरेट और बीड़ी में जिंदगी मत गुजारो। मेरतुल असरार में हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह 400 साल पुरानी किताब है। आप फरमाते हैं, एक दिन मुझे गरीब नवाज की जियारत हुई, मैंने हुजूर गरीब नवाज से मुलाकात की। बोलो बुलंद आवाज से कि बस कर दे या तकरीर कर। हाथ उठा करके बताओ जिसको घर जाना है तो जाओ भैया, जाओ जाओ, कोई तुम्हें पकड़ी सुनाएंगे। मेरा जायका है, जाओ। अक्सर तुम लोग के मेहरारू यहाँ है, कोई चाहिए नहीं पिलाए। हाँ, अल्लाह ताला इन औरतों को सलामत रखे, आमीन। चाहे इतनी ठंडक में, और अभी घर जाके चाय हो ना मांगे, चाहिए बनाई दो तो चाप सोई जाए बगल में, बस ज्यादा शोर शराबा नहीं, फजर का अलार्म रख के सोए, फिर फजर की नमाज पढ़ना, फिर खर्राटे मार के सो फजर के बाद, कोई तुम्हें जगाए नहीं है, फिर डायरेक्ट जोहर में जगाने आएंगे लोग। समझे मेरी बात को? बीवियों को रात में सताया करो। अब मेरे प्यारों, तो गरीब नवाज के ताल्लुक से हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती फरमाते कि मुझे हजरत की मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। किससे मुलाकात हो रही है? ख्वाजा गरीब नवाज से। और गरीब नवाज ने फरमाया, हिंदुस्तान में 4 वली ऐसे हैं, बोलो गरीब नवाज फरमा रहे, 4 वली ऐसे हैं जो मरने के बाद भी उनका तसर्रुफ ऐसा ही है जो उनकी जिंदगी। बोलो बोलो, तो स्टेज वाले कब बोलेंगे बाबू? माशाअल्लाह। फरमाते मरने के बाद भी उनका पावर उतना ही है जितना उनकी जिंदगी में था। जिस तरह वो जिंदगी में बैठा करते थे, ऐसे कब्र में भी अपने बैठे। वो 4 वली। हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती पूछते, हुजूर वो कौन है 4 वली हिंदुस्तान में? आप फरमाते हैं, एक बहराइच में सैयदना सालार मसूद गाजी, और सैयद सालार मसूद गाजी। दूसरा फरमाया गरीब नवाज ने, एक लखनपुर में हजरत जिंदा शाह मदार, और तीसरा फरमाया कछोचा में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, और चौथा फरमाया मानिकपुर शरीफ में शेख हिसाबुद्दीन चिश्ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीन मानिकपुर शरीफ। मैं कहता हूं नवाबगंज वालों, हमारी तावीज में इतना असर नहीं होगा जितना तुम उस बारगाह में खड़े होके कह दो, क्योंकि इस बारगाह का पता हमें किसी मुल्ला ने नहीं, अताए रसूल गरीब नवाज। जाओ इनकी बारगाह में, जाओ हाजिरी तो दो, अकड़ के नहीं छुप के कहो मैं मुजरिम हूं आका मुझे। जाओ और याद लेकर के जाओ। कोई जमीन का मैटर है, मकान का मामला है, मस्जिद का मामला, जाओ कहो तो का हुजूर अपनी मर्जी से नहीं आए हैं कि चौचा शरीफ से जामी मियां आले रसूल ने कहा है,
اور غریب نواز کے فرمان کے مطابق آئے ہیں. جاؤ تو جانا ہے نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمہاری دعا جو قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں. قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو حضرت دعا کر دو لیکن دماغ میں ہی ہے اگر پردھان نہیں چاہیے تو کموا ہو چاہیے, اگر سی او صاحب چاہیے تو کہاں سے. امام غزالی فرماتے جب آدمی دعا اللہ سے مانگے اس وقت اس کے دل و دماغ میں کسی اور کا تصور ہونا ہی نہیں چاہیے. کیا کہو تو ایک بار. میرے پیاروں آخری بات کہہ رہا ہوں, اپنی تاریخ کو پلٹ کے دیکھو. جب تم 313 تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں اپنے سر کو سجدے میں رکھا. جنگ کا میدان ہے تو جنگ کے میدان میں جنگی بات ہونی چاہیے نا, لیکن حضور جنگی بات نہیں فرما رہے ہیں, اپنے سر کو سجدے میں رکھا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں. اس رات حضور اتنا روئے, کہا اے اللہ اگر آج مومنوں کو فتح نہ ملی تو تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ رہے گا. ابو بکر صدیق فرماتے حضور کی سکسکیوں سے میں نے رونا شروع کر دیا سجدے میں. یہاں کریم آقا کا سر اٹھا بھی نہیں, اللہ نے فرشتوں کی جماعت سے اہل ایمان کی حفاظت فرمائی. پتہ کیا چلا, ہر بار میدانوں میں اوزار و طاقت کے بل پر جیت نہیں ہوتی. مسلمانوں نے جب جب جیتا ہے تو پہلے اپنے سر کو خدا کے حضور رکھ دیا ہے, اور جب یہ سر خدا کے سامنے چھوٹ جاتا ہے اللہ اکبر, دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں جھکا نہیں سکتی. آج آپ کے دماغ میں یہ ہے, بس آخری بات سننا ہے کہ یہاں جانے سے ہم کو کیا ملتا ہے. میرے پیاروں, جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ولی کی بارگاہ میں صرف غریب جاتے ہیں, میں نے کہا حضور نے خود فرمایا ایمان تو غریبوں کے پاس جا کے دیکھو. سیٹوں کے پاس ایمان وہ نہیں ہے جو غریبوں کے پاس ہوتا ہے. ایک غریب جب دسترخوان لگاتا ہے نا تو رو رو کر کے لگاتا ہے, سجا سجا کے لگاتا ہے. ایک امیر جب لگاتا ہے تو 56 کا سینہ دکھا کے لگاتا ہے. اسی لیے غریب کے دسترخوان کی چٹنی میں بھی وہ ذائقہ ملتا ہے جو امیروں کو وہاں سموسے میں ذائقہ نہیں مل پاتا, کیونکہ ہم سب غریب ہیں تبھی تو غریب نواز ہمارے لیے آئے ہیں. اور سنو, جو یہ سمجھتا ہے یہ وہابی نجدی جو کہتے ہیں کہ یہ تو جاہل لوگ جاتے ہیں, غریب لوگ جاتے ہیں ولیوں کے پاس, پڑھا لکھا طبقہ نہیں جاتا. میں کہتا ہوں سنو, جو مقدر والے ہوتے ہیں وہی اللہ کے ولیوں کے قریب جاتے ہیں, اور جن کا نصیب ہی بہتر ہو وہ ولیوں کے پاس نہیں, وہ اپنے شیطانوں کے پاس جایا کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے ہر شہر کے پیچھے شریف لگتا ہے. ان کے شہروں کا نام لو دیوبند. شریف جوڑو گے بھی تو شرافت کے وقار ختم ہو جائے گا. نانوتوی, تھانہ بھون, نموے دیکھو کیسا. ہم لوگ کا نام دیکھو کچھوچھا شریف, مہریرہ شریف, مانک پور شریف, الہ آباد شریف. یہاں پر وہ الہ آباد میں وہ اللہ کے ولی آرام فرما حضرت شیخ منور الہ آبادی جو حضور غوث اعظم کے خلیفہ ہے. اگر میں کہوں یو پی میں اگر رنگ قادریت کچھوچھے کے بعد کہیں ہے تو الہ آباد میں شاہ منور الہ آبادی کی حضور غوث پاک کے خلیفہ ہے جن کی عمر تقریباً 500 سال رہی, لیکن یو پی والوں کو اس سے فرصت نہیں مل رہی ہے تو کہاں منور شاہ کی بارگاہ میں جائیں گے. یو پی والوں کو تو ابھی جھنڈوں سے فرصت نہیں مل رہی تو کہاں شیخ حسام الدین کے پاس جائیں گے. میرے پیاروں, ہٹو اس الجھنوں سے. ہم گجرات میں رہتے ہیں الحمدللہ. گجرات کا مسلمان ووٹ کو سوچتا ہی نہیں ہے, وہ یہ سوچتا ہے شاہ عالم ہم سے خوش رہے, میرا داتار ہم سے خوش رہے, مخدوم سمنانی ہم سے خوش رہے, غریب نواز ہم سے خوش رہے. بس یہ خوش ہے, کوئی ناراض بھی ہوتا رہے, ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے. سب چھوڑو چٹکی اٹکی کے چکر میں.
पड़ जाओ बुजुर्गों के चक्कर, उनके दीवाने बन जाओ। जब उनके दीवाने हो जाओगे तो यही नवाबगंज के लोग तेरे दीवाने हो जाएंगे। बन तो सही। क्या कहने चाहिए। तो ये जो वहाबियों ने जो तोहमत लगाई कि गरीब जाते हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है हम गरीब ही भले। अभी 2024 में फ्रांस का राष्ट्रपति ताजमहल देखने नहीं गया, कुतुब मीनार देखने नहीं गया, लाल किले देखने नहीं गया, क्या कहने। हुमायूं का मकबरा देखने नहीं गया, देवबंद में नहीं गया, नदवा में नहीं गया, बल्कि कहा गया जब नरेंद्र मोदी जी ने पूछा मिस्टर मैक्रोन वेयर यू वांट टू विजिट इन इंडिया, इंडिया में घूमना कहाँ चाहते हो। 2024-26 जनवरी का वाकया है, यूट्यूब पर जाकर के देख लेना, इंडिया में कहाँ घूमना चाहते हो। तो फ्रांस जो मुल्क का राष्ट्रपति पूरी दुनिया में एंटी मुस्लिम के नाम से मशहूर है, जिसके दौरे हुकूमत में कुरान जलाया गया, नबी पाक की बेहुरमती की गई, उस मुल्क का राष्ट्रपति जब भारत आता है, हमारे वजीर आजम पूछते हैं कि भारत में तुम्हें कहां जाना है, तो उसने ये नहीं कहा कुतुब मीनार देखने जाना है, लाल किला देखने जाना है, महाराणा प्रताप की कोठी देखने जाना है, हवा महल देखने जाना है, बल्कि उसने ये कहा मुझे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे। क्या कहा? निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाना है। मेरे प्यारों, क्या गरीब जाते हैं? यूरोप का पावरफुल मुल्क है फ्रांस, उस मुल्क का मौजूदा राष्ट्रपति अभी भी राष्ट्रपति है, वो कहाँ आया? महबूब इलाही की बारगाह। क्या बात, क्या बात। मैं तो कहता हूँ बुरा मत मानना प्यारो, अजमेर शरीफ में महबूब इलाही में तुम टोपी लगा के भी अपनी फरियाद पूरी नहीं करा पाते हो, और एक शख्स टीका लगा करके भी अपनी मुरादें लेके चला जाता है। वजह क्या है? वो अगरचे हिंदू है, लेकिन उसे मालूम है आस्था होती क्या है, अकीदत होती क्या है। वो जब मांगता है कहता है कृपा करो ख्वाजा, देख लो एक बार ख्वाजा, उस वक्त उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता है। लेकिन जब तुम जाते हो, वो खादिम साहब लूट रहा है, यहाँ सोना लगा हुआ है, यहाँ चांदी लगी है, उसने इतनी अंगूठी पहनी है, वो देखो कव्वाली वाले, देखो वो औरत कैसा भाग रही है। अब मैं तू बुराई देखने गया था कि अपनी फरियाद लेकर के गया? तो पता क्या चला, जिस हालत में नवाबगंज वालों ने लात मार के भगाया था, उसी हालत में खादिमों ने तुमको भगा दिया। क्या कहने। अरे प्यारो, तुमने दीन की जगह को भी मजाक का अड्डा बना के रखा है। मैं कई गैर मुस्लिम को मुफ्ती साहब देखा है, फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारों को देखा है, आप यूट्यूब पर देखो, जो अपना जिस्म दिखा के मशहूर होती हैं, ऐसी अदाकारन भी अजमेर शरीफ में अपने सरों पर अपने सरों पर पट्टा लगा करके बाअदब हाजिरी देती है। मेरे प्यारो, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हमने तो उर्स को भी मजाक बना के रख दिया, उर्स को भी वौलिया की बारगाह को पिकनिक स्पॉट बना करके रख दिया। मैंने गैरों को देखा, हमारी हिंदू कौम के जो लोग हैं वो भी मियाँ बीवी तफरी नहीं करते अजमेर शरीफ में, और आपको देखता हूँ कोई निकाब लगा के कोई नौजवान गपशप कर रहे हो। किस बारगाह में आए हो? किस बारगाह में आए हो? ये तो तसव्वुर करो। कोई खौफ ना रहा, कोई खौफ ना रहा, सारे खौफ मिट गए। मेरे प्यारो, जब तुम्हारे दिलों में औलिया की अजमत ना जिंदा रह गई, तब तो कोई भी तुम्हें मार के चला जाया करे। माइक्रोन आया, 1 घंटा महबूब इलाही की बारगाह में हाजिरी दिया। अब हमारे पुलिस के लोग भी बैठे हैं, 2 टाइप की मानसिकता है मुसलमानों के पास। अब सोचो तो सही, जो सूफी होते हैं तो उस राष्ट्रपति फ्रांस का आता है सूफियों के पास, और जो लोग तालिबानी होते हैं वो यूपी में कहाँ गए वो भी सबको मालूम है। पता क्या चला, सूफी समाज जो है, सूफी समाज हिंसा को प्रमोट नहीं करता,
بھائی چارگی کو پرموٹ کرتا ہے، محبتوں کو عام کرتا ہے، نفرتوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ میرے پیارو، تو اس نے 1 گھنٹہ گزارا محبوب الہی کی بارگاہ میں، چادر پیش کی، قوالی سنی، اور سننے کے بعد اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی چھوی تو اینٹی مسلم ہے، اس کے باوجود بھی آپ مسلمانوں کے استھل پر آئے ہیں، نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر آئے ہیں۔ اس نے کہا سنو، پہلے تو میں مسلمانوں کے خلاف تھا، لیکن نظام الدین اولیاء کی پڑھی ہوئی لکھی ہوئی کتاب کو میں پڑھتے جا رہا تھا اور مسلمانوں کو سمجھتے جا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اسلام اور ہے، مسلمان اور ہے، اور اسلام وہ دین ہے جو امن کو لاتا ہے، جو پیس کو دنیا میں عام کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ قوالی بس آخری بات ہے، منورنجن کے لیے حرام ہے، حرام، اتنا یاد رکھنا۔ اور بدنصیبی سے میں یہاں کے علماء سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، اگر آپ کے علاقے میں مقابلے والی قوالی ہو، آپ اس کے جنازے میں مت شریک ہو، اس کی شادی کا نکاح مت پڑھائیں۔ ارے مولانا صاحب لوگ، اگر آپ کس گئے، رزق دینے والا اللہ ہے، یہ کمیٹی والے کیا کریں گے؟ ایک بورڈ لگا دیجئے، اگر مقابلے والی قوالی کوئی کمیٹی کراتی ہے، میرے پیارو حرام کام کر کے ان ولیوں کو تم تکلیف پہنچا رہے ہو، ان کو روح کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ جو ولی آئے تھے حرام کو مٹا دے، آپ تم ان کے دروازے پر وہ حرام کام شروع کر دیا۔ میرے پیارو، ایسی قوالی تمہیں جہنم میں داخل کر دے گی، ایسی قوالی کا پیسہ لٹانے والے تمہاری دولت میں برکتیں ختم ہو جائیں گی، محتاج ہو جاؤ گے۔ سن لو، میں خود ایک خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے اس سال جو قوالوں کے ماحول دیکھے نا، میں نے بھی طے کر لیا اب قوالی نہیں سنوں گا، کیونکہ اب یہ قوال دنیا دار ہو گئے، ان کے اندر وہ عشق نہیں رہ گیا، ان کے اندر وہ محبت نہیں رہ گئی، یہ وہی پڑھتے ہیں جس میں انہیں پیسہ ملتا ہے۔ میں ان قوالوں سے بھی کہوں گا، تم نے علی کا ذکر کر کر کے ہماری قوم کے دلوں پر حکومت تو کی، اور جب تجھے عزت ملی تو تو عورتوں کے ساتھ گانے لگا، تو عورتوں کی مدحو ثنا کرنے لگا۔ ارے پیارو، چند منٹ کے ڈھول باجے یہ تمہیں جنت کی طرف نہیں لے جائیں گے، بلکہ تمہاری زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں گے۔ سننا ہے تو ایسوں کی سنو کہ سنانے والا جب امیر خسرو ہوتا ہے تو سننے والے نظام الدین اولیاء ہوتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا، قوالی سننا ان کے لیے جائز ہے، ان کے لیے رعایت ہے کہ اگر 2 دن تک انہیں کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، پھر بھی وہ قناعت کر سکے، صبر کر سکے، ایسا ہی آدمی قوالی سن سکتا۔ اتنا 2 دن بھوکا پیاسا رکھ سکے۔ ہے کوئی کمر کو مٹکا کر کے پیسے لٹانے والی قوم؟ اگر تم آج یہ حرکت کرو گے، کل تمہارے موت پر دوسرے لوگ پیسے لٹا کر کے جائیں گے۔ سمجھو اپنی قیمت کو، سمجھو اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے میری قوم کے لوگوں، اگر عزت چاہتے ہو تو آپ اسی قرآن سے پوچھو۔ تو قرآن کہتا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم نے پرہیز کیا گناہ کبیرہ سے یا ان گناہوں سے جس کے لیے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے مت کرو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو رب فرماتا ہے اگر تم گناہ کبیرہ سے بچ گئے تو اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ وَنُدْخِلَ الْكَرِيمَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں عزت والے مکان میں داخل فرما دے گا۔
पता क्या चला, वयुदखिलकुम मुदखिलन करीमा, और अल्लाह तुम्हें दाखिल कर देगा इज्जत वाले मकान में। पता क्या चला, जब आदमी गुनाहों से बचता है, गुनाहे कबीरा से बचता है, शराब से बचेगा, जुए से बचेगा, जिना से बचेगा, अल्लाह अकबर झूठ से बचेगा, हसद से बचेगा, सूद से बचेगा, ब्याज से बचेगा, तो अल्लाह ताला इसके इस गुनाहे कबीरा के बचने की वजह से अल्लाह उसे इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा देगा। क्योंकि इज्जत किसी दुनियादार की चौखट पर नहीं, वही कुरान कहता है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर इज्जत चाहते हो इस सदी में तो आओ गुनाहे कबीरा से तौबा करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो और कहो मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा खाने वाले। और मेरे इमाम ने कहा कि जब बंदे मोमिन महफिले मिलाद में बैठ करके तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है, तो मुस्तफा का करीब दामन इतना वसी है कि बरसता नहीं देखकर अमरे रहमत बतों पर भी बरसा दे। बरसाने वाले या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे प्यारो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपनी बीवियों की इज्जत करो, उन्हें असियत तकलीफ मत दो। और अगर तुमने अपनी बीवी के दिन की शुरुआत गाली गलौज से किया तो आज जिस बच्चे को तू समझ रहा है कि ये मासूम है, ये ना समझ है, ये एक दिन का है, कल दिन आएगा तेरा वो बच्चा किसी घर से नहीं, तेरी जुबानी गाली सीख के तुझे गाली बनता हुआ नजर आएगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी जमात के लोगों, ऐ हम तमाम आका करीम के सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैंने जो कुछ भी अर्ज किया अल्लाह इन सब पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी बात पे कहने सुनने समझाने में कोई गलती कसरत सहवन हुई हो, अल्लाह अपनी रहमत से माफ फरमाए। इस महफिल को कबूल फरमा करके हम सबको सवाबे दारैन सवाबे दारैन अता फरमाए। बस मैं इतना कहूंगा मेरे प्यारो, अगर कव्वाली कराते हो खुदारा ऐसी महफिल मत कराना कि जो आज की रात की सारी बरकतें खत्म हो जाए। और फिर भी कमेटी वाले अगर ना मानते हो, मैं अपनी कौम की औरतों से हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने बच्चों को ऐसी महफिल में आने मत देना, अपने शोहरों को आने मत देना। तुम पर ये चीज, ये काम छोड़ करके जाता हो, क्योंकि मेरे प्यारो जिस महफिल से मेरे आका के दीन का मजाक उड़ता है, ऐसी महफिल से परहेज करना तुम पर लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है। जो कौम आई थी दूसरों को संवारने, आज वो कौमी बदहाली की शिकार हो चुकी है। तो हमें एक हमारी कौम के नौजवानों, इस उर्स को मनाने वाले शहीद मर्द बख्श बाबा के उर्स में कमेटी के तमाम मेंबरानों, दिल से अगर सिर्फ दिल से वादा कर लो, क्योंकि ये कोई आम आलिम नहीं कह रहा है, ये तुमसे रिक्वेस्ट नबी के घर का एक शहजादा कह रहा है, आले नबी कर रहा है और हाथ जोड़ के कर रहा है। खुदारा मेरे नाना के दीन का मजाक मत उड़ाओ, मत उड़ाओ। अगर तुमने तय कर लिया है किसी को बुला रहे हो तो अपावोसू हो करके सुनना, लेकिन किसी औरत को स्टेज पर आने की इजाजत मत देना, मत देना। कोई औरत को मत बैठाना, क्योंकि प्यारो अगर तुम आले रसूल से वफा करते हो, ये याद रख लेना, जिस मिंबर पर नाइबे रसूल बैठे हो, जिस मिंबर पर हुसैन का खून बैठा हो, अगर इसी मिंबर पर तुम यजीदियत का काम अंजाम दोगे, खुदा की ये तुम अपनी आखिरत को बर्बाद करोगे, ये इमाम हुसैन की रूह को तकलीफ दोगे। एक बात मैं कह के बस खत्म करता हूं, मेरे प्यारो तुम किस वह में हो, तुमने किसने धक्का दिया है? जो इमाम हुसैन ने यजीद के साथ जंग की थी, जंग की वजह शराब थी, जंग की वजह अय्याशी थी, जंग की वजह ढोल और ताशा था, जंग की वजह खुराफात थी, जंग की वजह शराब जुआ था, जंग की वजह बेनमाजी यजीद था। मेरे हुसैन ने कहा सुनो, मैं तो कट जाऊंगा, लेकिन नाना के दीन का सौदा मैं कर सकता हूं। हुसैन ने ये नहीं देखा कि बेटा एक सहाबी का है, पोता एक सहाबी का है। हुसैन ने ये देखा जो मेरे नाना का वफादार है वही मेरा है, और जो नाना का
रही वो हमारा हो रही। मेरे प्यारो अब सोचो, सोचने का अलमिया है, गौर करो। जब हुसैन ने इतनी बड़ी ताकत से जंग लड़ा तो आज शराब के नशे में हुसैन हुसैन कहने वालों तुम्हें हुसैन ना मिलेगा, यजीद मिल जाएगा। आज जुए खेलने वालों अली अली करने से अली ना मिलेगा, यजीद तुम्हें मिल जाएगा। मेरे प्यारो ये गफलत की नींद से बेदार हो, बेदार हो। जिस हुसैन ने शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया। आज आप कहते हो ये मौलवी साहब लोग करते हैं, मौलवी साहब कुछ नहीं करते। जो हुसैन ने किया है उसी पर मौलवी साहब अमल कराते हैं, उसी पर अमल कराते हैं। इस्लाम हमारी तबीयत का मज़हब नहीं है, इस्लाम शरीयत से चलता है। मैं फिर कहूँगा मेरे प्यारों, औरों में हम में फर्क इतना है। ऐ मेरी कौम की बच्चियों, मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पर तुम मॉडलों को देख करके अपने लिबास को तंग मत करना, अपने हिजाब को मत छोड़ना, उनमें और अपने में फर्क समझना, क्योंकि उनका कोई वाली नहीं है, उनका कोई रोल मॉडल नहीं है, उनका कोई गाइड करने वाला नहीं है। तुम्हारा रोल मॉडल तो खातून जन्नत है, तुम्हारी रोल मॉडल तो सैयदा बीबी ज़ैनब है। जो यजीदियों ने जब चादर को सर से हटाया, हजरत बीबी ज़ैनब ने यही कहा था, कहा सुनो तुम खाना मत दो हम भूखे रहेंगे, पानी मत पिलाओ प्यासे रहेंगे, लेकिन जिस घर की शहजादियों के सर के बाल को फरिश्तों ने न देखा हो, ए यजीदियों सर से दुपट्टे मत हटाओ। मेरे प्यारो, आपकी रोल मॉडल सैयदा फातिमा ज़हरा है। अगर आप चाहती हो कि आपका शौहर शराब छोड़ दे, बदकारी को छोड़ दे, मैं आपको अमल दे के जाता हूँ। हुजूर गौसे आजम की औलाद हूँ, आप इस पर अमल कर लेना। मैं यकीन से कहता हूँ इंशाअल्लाह मेरे गौस की तवज्जो से तेरा शौहर शराब पीना बंद कर देगा। अमल है क्या? अमल इतना है, अमल इतना है कि जब आप उठो और रोटी बनाओ, खाना बनाओ, तब बावजू होकर के बनाओ, बावजू होकर के बनाओ, और ये सोच करके कि ये मुझे किसी मौलाना ने नहीं, नबी के घर वाले ने फार्मूला दिया है। और जब रोटी बेलो बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के बेलो, और ये सोच के बेलो, ए अल्लाह मैं तेरी कुरान की आयत का विर्द करके रोटी पाकिस्तानी की हालत में बना रही हूँ। जब मेरा शौहर खाए इसके दिल में शराब की नफरत आ जाए, जुए की नफरत आ जाए, जिना की नफरत आ जाए, खुराफात की नफरत आ जाए, मैं कसम खा के कहता हूँ ऐ मेरी कौम की माँ बहनों, अगर 40 दिन तुमने बावजू करके खाना पका दिया, मेरी रगों में अब्दुल कादिर जिलानी का खून है, उस खून की कसम खा के कहता हूँ 41वें दिन तेरा शौहर शराब को छोड़ता नजर आए इंशाअल्लाह। ये गारंटी है। अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात ना मानते हो, बिस्मिल्लाह करके उन्हें पानी पर 3 बार सूरह नास पढ़ के दम करके पानी पिलाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे तुम्हारे वफादार हो जाएंगे। पर इतना ख्याल रखना, इतना ख्याल रखना कि आज के इस मॉडर्न दौर को देख करके अपने जिस्म से हिजाब को मत हटाना, बेपर्दगी को आम मत करना, क्योंकि मेरे प्यारो ये सब चीजें चंद दिनों की है, चंद सालों की है, उसके बाद इसी मट्टी की गिज़ा इस जिस्म को बनना है, इसी मट्टी में जाना है, इसी मट्टी में जाना है। न तुम्हारी चीख कोई सुन पाएगा, न तुम्हारी पुकार कोई सुन पाएगा, न तुम्हारी कोई फरियाद को सुन पाएगा। जो बच्चे की खुशी के लिए तुमने नाजायज काम किए थे, वो बच्चे भी तेरे कुछ फायदा पहुंचा नहीं पाएंगे। आओ ना आखिरत का अकाउंट तैयार करो। एक शख्स आया जुनैद बगदादी के पास, बस करो बात आ गई जहन में। एक शख्स आया, कहा हुजूर मैंने ख्वाब देखा कि मेरे बाप पर बड़ा अज़ाब हो रहा है, हुजूर दुआ फरमा दे। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते ठीक है बेटा जा। दूसरे दिन आया, मुस्कुराते हुए आया, कहा हुजूर क्या हुआ? कहा हुजूर मैंने ख्वाब देखा मेरा बाप तो जन्नत के झूले पर झूल रहा है। हुजूर ऐसा कौन सा अमल आपने किया, ऐसा कौन सा विर्द आपने किया कि अल्लाह ने मेरे बाप पर जहन्नम से उसे बचा के जन्नत अता कर दी? जुनैद बगदादी फरमाते हैं मैंने 1.25 लाख बार कलमा अपनी इसाले सवाब के लिए पढ़ा था।
کہ اللہ پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد کوئی میرا احسان ثواب کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو اپنے لیے پڑھا تھا کہ جب میرا انتقال ہو تو یہ کلمے کا ثواب میری روح کو مل جائے۔ کہا بیٹا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کہا اے اللہ جو جنید نے اپنے لیے 1.25 لاکھ بار کلمہ پڑھا ہے، اس 1.25 لاکھ کلمے کا ثواب اس بچے کی باپ کو پہنچا دے۔ میں نے اتنا کہا، میرے رب نے سن لیا، میرے رب نے سن لیا، یہ اس کا احسان ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو ہی جائے گا، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی نوازش ہے، یہ اس کا احسان ہے، اس نے سن لیا، اور میرے پڑھے ہوئے کلمے کی برکت سے تیرے باپ کو اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ پیارو، دنیاوی کھاتے تو سب کے پاس ہے، جن دھن یوجنا کھاتے سب کے پاس ہے، بینک میں اکاؤنٹ سب کے پاس ہے، آؤ نا آخرت کا ایک کھاتا کھولو، شعبان کا مہینہ ہے، وہ کھاتے میں کرنا کیا ہے؟ کھاتے میں طے کرو 5 وقت کی نماز میں سے ہمیں نماز پڑھنی ہے، کم سے کم دن میں 11 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، 100 بار درود شریف پڑھنا ہے، کم سے کم 10 بار استغفار ملائکہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، 100 بار استغفار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھتے رہو، آخرت کا کھاتا بناتے رہو۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے جب تو اس نیت سے پڑھے گا، اے اللہ اس کا ثواب میرے مرنے کے بعد مجھے پہنچا، تو کم سے کم اتنا یقین تو ہو جائے گا کہ تو بے ایمان ہو کر کے نہیں، ایمان کی حالت میں مرے گا، ایمان کی حالت میں مرے گا، ایمان کے ساتھ جائے گا۔ اب کوئی تیری کمر پر فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، تیرا پڑھا ہوا اکاؤنٹ مجھے کل قیامت میں اور قبر میں کام آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کر کے نکلو، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔